اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ یہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا مناظر بنا گھومتا ہے یہ رجا، اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو امن علی قادری اور سعیدی سحران خان اور ان کی جو ٹیم ہے خنجر رضا، یہ لوگ ہم سے گالی گلوچ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ گالی گلوچ ہم نہیں کرتے، الحمدللہ گالی گلوچ یہی کرتے ہیں اہل حدیث، اور یہ نام لگاتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت حنفی سنی حنفی بریلویوں پر کہ ہم گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو الحمدللہ سنوائیں گے ان کی گالیاں۔ یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو قاعدے سے بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم عالم لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، علم والوں سے بات کرتے ہیں، گالی گلوچ کرنے والوں سے ہم بات نہیں کرتے۔ اور یہ اپنی اصل چھپا کے بھولے بھالے سنی بھائیوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہے الحمدللہ کہ آج تک ان وہابیوں کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مناظر جو بنتا ہے، حالانکہ ان کو مناظرہ کیا ہوتا ہے یہی نہیں معلوم ہوتا، لیکن ان کا کوئی سی بھی بڑے سے بڑا چیلنج بھی الحمدللہ ہمارا کہ ہم سے آ کر اور مناظرہ کر لے، اور ان کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سلے سے سلا آج تک تو الحمدللہ ٹک نہیں پایا، یہ لوگ بھی ٹک نہیں پائے۔ تو جب بھی ہم ان سے مناظرہ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے، یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور جبکہ الحمدللہ ہم گالیاں نہیں دیتے، کچھ نہیں کرتے، یہی ہمیں ریموو کرتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں، ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، اس لیے بھاگتے ہیں ہم سے، اور لوگوں کو اس لیے ہمارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ تاکہ ہماری اصلیت، تاکہ ہم نے اگر ان لوگوں سے مناظرہ کر لیا، مباحثہ کر لیا، بات چیت کر لی، تو ہم لوگ کذاب، بدترین جہنمی اور کافر ثابت نہ ہو جائیں، اس لیے ہم ان پر جھوٹے الزام لگائیں کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اب الحمدللہ یہ بہت شریف بنتے ہیں، تو ہم ان کی گالیاں آپ لوگوں کو سنوائیں گے کہ یہ کتنی گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ سنیے، یہ دیکھے رہے غیر مقلد، یہ رجا اہل حدیث ہے، اس کی گالی سنیے آپ۔ اس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہم دعویٰ کرے ہیں، دیکھ لے یہ رنڈی کا بچہ پھر بول رہا ہے من۔ ارے تو بولنا تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہم دعویٰ کرے ہیں، دیکھ لے یہ رنڈی کا بچہ پھر بول رہا ہے من۔ ارے تو بولنا تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہم دعویٰ کرے ہیں، دیکھ لے یہ رنڈی کا بچہ پھر بول رہا ہے من۔ ارے تو بولنا تو کیا تو جیسا کہ آپ لوگوں نے اس رجا اہل حدیث کی گالی سنی، تو میں ان اہل حدیثوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مناظر تو گالی دیتے ہی نہیں، یہ تو عالم ہیں، سب سے بڑے مناظر ہیں، تو جناب یہ آپ کے منہ پر نہیں دیتے، جب یہ ہمارے سامنے پڑھتے ہیں تو پوری بھڑاس نکالتے ہیں، کیونکہ یہ جب پھنستے ہیں تو پھنسنے کے بعد میں یہ گالیاں دے کر اور اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو یہاں یہ گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو سنیے اور ان کی اصلیت پہچانیے۔ اور اب انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی اور ہمارے جو سحران بھائی ہیں ان کی بات چیت جو ہوئی تھی رفاع سبابہ پر اس سے، وہ الحمدللہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قسم کھا کر اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ التحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں آتا، قسم کھا کر بولا ہے، اس کو بھی سنیے، اور آپ پہچانیے ان کے مکروہ چہرے۔ یہ باتیں کتنی ہی میٹھی میٹھی کر لیں، لیکن تمہیں صرف اور صرف ایمان تمہارا چھیننے کی کوشش میں لگے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے لگے ہیں لوگوں کو۔ تو ہمیں الحمدللہ ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے لگے ہیں۔ ان کی حقیقت پہچانیے، سنیے اور خود فیصلہ کیجیے۔ ارے خاموش تو بڑھیا نا، بول رہا ہوں نا۔ نہیں، اس کو بولنا ہے یا تو بولے گا؟ ایک بات کر لو، اگر تیرے پچھواڑے میں دم نہیں ہے تو امن کو دے دے، تیرے بس کی نہیں ہے تو۔ ارے چھپری نبے یتیم العلم
बात मैं ही कर रहा हूँ, तो टॉपिक फिर उससे बोल के बीच में अगर बोला आपके तो मैं कॉल काटूंगा, बीच में ना बोल बिल्कुल भी। तो तू भागने की प्लानिंग मत बना। कॉल तो क्यों बोल रहा है बीच में? तू भागने की प्लानिंग बना तो रहा है। अमन चूहा क्यों बोल रहा है बीच में? तो तू भागने की प्लानिंग मत बना। अबे तो उसे क्या पता अभी मैं भाग रहा हूँ नहीं भाग रहा हूँ, इनमें से वो गया तुम्हें जाहिल कहीं का। तू भाग रहा है, जाहिल है मतलब। मैं खड़ा हूँ जाहिल कहीं का, यहाँ भी झूठ है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। चलो बात करो सहरान भाई, मैं नहीं बोलूंगा। अब सुन ले, अब मेरा दावा सुन ले। ये हाँ लफ्जों की दुरुस्त अदायगी करेंगे, ठीक है। देख, इसने कहा है कि तुम्हारा अमल है इस चीज के ऊपर कि रफ़ाए सबाबा आप करते हैं। रफ़ाए सबाबा के ऊपर बताया ना तूने मौजू पूरा मुकम्मल में कर रहा हूँ मैंने, वो भी बता। अब तू अभी से शुरू कर दिया, अभी से हगना शुरू कर दिया। अधूरी बात करेगा तो मैं बीच में बोलूंगा। अभी से क्यों हग रहा है? अभी मुकम्मल करने देना, अभी दावा पेश ही नहीं किया, अधूरी कर जाहिल कहीं का। मैं अपना दावा खुद पेश करूंगा ना। मैं इससे ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है कि तुम्हारा रफ़ाए सबाबा पर अमल है तो तुम इसके दावेदार हो। मैं पूछता हूँ, पहले तो मैं ये ले लूँ ना कि आप रफ़ाए सबाबा के कायल हैं या नहीं। अगर मुतलक इनकारी है तो मैं बिल्कुल पेश करने के लिए तैयार हूँ अपना दावा। अगर ये कहीं पर रफ़ाए सबाबा करते हैं तो वो वजाहत कर दें मुझको, ताकि मैं फिर अपना मुतलक दावा पेश करूँ। क्या आप मुतलक रफ़ाए सबाबा का इनकार करते हैं? हो गया तेरा? हाँ बताइए। बेबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्ली अलैना मन ला यरहमुना रब्बि ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैंने कहा था ना, इससे बस की बात ही नहीं है। मैंने कहा इसे टोका क्यों था? मैंने बीच में टोका था इसलिए से कि मुकम्मल तो बात करेंगा, अधूरी बात नहीं करेंगा। मैंने क्या कहा था? मैंने ये भी कहा था कि तशहुद में जो तुम लोग उंगली को हरकत देते हो, ठीक है, वो तो हम भी करते हैं, लेकिन हम उंगली को हरकत देने के कायल नहीं है। हम सिर्फ एक बार उंगली उठा देते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह पर गिरा देते। ला इलाहा पर उंगली उठाते हैं हम और नबी अलैहिस्सलाम के इसमें मुबारक पर उंगली हम गिरा देते हैं। तो हमारा तशहुद में हमारा ये अमल होता है। लेकिन तुम लोग तशहुद में जो उंगली को बार बार हरकत देते हो, तो इस पर तुम्हारा अमल है और इस मामले में मुद्दई तुम है। और अल्लाह मजूर जानी रहमतुल्लाह ताला ने शरह मुनाज़रे के रसीदिया मतन के पेज नंबर 48 से खुद लिखा है कि मुद्दई के जिम्मे दलील होती है जिस पर वो अमल पैरा होता है। तो लिहाजा इस पर तेरा अमल है। तुम लोग तशहुद में उंगली को हरकत देते तो हम इसकी उंगली को हरकत नहीं देते। जिस तरह से हम मिलाद करते हैं तो तुम लोग हमें फोन कर बोलते हो कि ये मिलाद कहाँ से साबित है, इसकी दलील दो। उसी तरह से अब तुम्हारा इस पर अमल है कि तुम लोग तशहुद में उंगली को हरकत देते हो। तो कब से हरकत देते हो? वो हरकत देना शुरू स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू होता है? जिस तरह से हम तशहुद में जब हम बैठते हैं अत्तहियात में तो हम उंगली कब उठाते हैं, हम इसकी भी दलील देंगे। किस लफ्ज़ पर उंगली उठाते हैं हम ये भी बताएंगे। उसी तरह से तुम उंगली को जो हरकत देते हो तो स्टार्ट कब करते हो? 1 मिनट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो सामईन, आपने सुना इनकी जहालत। कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर उंगली गिराते हैं। रब्बे काबा की कसम, अत्तहियात के अंदर रसूलुल्लाह का नाम आता ही नहीं। रब्बे काबा की कसम, अत्तहियात के अंदर रसूलुल्लाह का नाम आता ही नहीं। गिराते हैं। रब्बे काबा की कसम, अत्तहियात के अंदर रसूलुल्लाह का नाम आता ही नहीं। रब्बे काबा की कसम, अत्तहियात के अंदर रसूलुल्लाह का नाम आता ही नहीं। अब्दुहु व रसूलुहु का लफ्ज है और कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उंगली गिराते हैं। झूठा, इसे अत्तहियात तक नहीं आता। आपने सुन लिया, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उंगली को गिराते हैं। हालांकि अत्तहियात में कहीं भी रसूलुल्लाह का नाम नहीं आता। यानी ये जाहिल है, इसको अत्तहियात तक नहीं आया, अभी नमाज मुकम्मल नहीं है इसकी, और ये मुनाजरा करने के लिए आ गया। तो सुना आप लोगों ने भाइयों, ये इतना बड़ा दावा कर रहा है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कसम उठाकर कह रहा है कि अत्तहियात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ही नहीं आता। इतना बड़ा इसने दावा कर दिया, इतना बड़ा इसने झूठ बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जो हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं अत्तहियात के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे कि ये आपको स्क्रीन पर अत्तहियात जो आपको दिख रही है, आप खुद पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। साफ साफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, मगर इन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी है, बुग़्ज़ है कि अत्तहियात ही का इनकार कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, और कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है अत्तहियात में। ये सहरान भाई कह रहे हैं, तो इनको अत्तहियात ही नहीं आती, नमाज ही मुकम्मल नहीं है, और ख़ुद कसम खा करके कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अत्तहियात में नाम मुबारक ही नहीं आता। अब सहरान भाई जो है हमारे, तो उन्होंने शुरू में तो यही कहा था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली गिराते हैं जब उठाते हैं, इशारा करते हैं। तो अब जब उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया तो उनसे सबक़तुल लिसानी में ये निकल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर हम उंगली जो है नीचे लाते हैं। ये उनसे सबक़तुल लिसानी हुई यहाँ पर। इसने क्या काम किया, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम मुबारक का ही इनकार कर दिया कि अत्तहियात में नाम मुबारक ही आता है। उन्होंने तो उनके तो ज़ुबान से सबक़तुल लिसानी हुई थी कि उंगली जो है वो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर गिराते हैं अत्तहियात में, लेकिन इसने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अत्तहियात से इनकार ही कर दिया कि नाम मुबारक भी आता है, और वो भी कसम खा कर। अब ये सब जानते हैं कि सबक़तुल लिसानी तो हो जाती है, जैसे उंगली उठाई ला इलाहा पर या इल्लल्लाह पर गिरा दी, या उनकी ज़ुबान से निकल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गिरा दी, तो ये तो सबक़तुल लिसानी है कि उंगली हमने गिरा दी। लेकिन कसम खा के अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला की सबसे बड़ी कसम खाकर और झूठ बोल रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अत्तहियात में नाम मुबारक ही नहीं आता। खैर, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इनके जितने भी अहले खबीस हैं, इनके जितने भी जो है इन जाहिल मुनाज़िरों के मानने चाहने वाले हैं, उनको शेयर करिए, और अपने भाइयों को भी शेयर करिए, उनकी जहालत आम कीजिए, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं में याद रखिए अपनी दुआओं के साथ साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।